Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So already I have uploaded 3 videos on bipartite settlement MOU. And lot of questions has been asked. And that's why we decided to deal all these questions one by one so that all your anxieties are cleared in a systematic manner. So we will be running series of videos in which we will handle these questions. If you have any question, you can post on the comments. I will note down and cover in the future videos. Besides this, I will advise you to watch previous 3 videos also. Link I am providing in the description where a playlist is created for this. You can watch all the 4 videos now together. You will have clear idea. So few questions I will take in this video. The first question that is frequently asked, whether it is applicable to private sector banks also. Now, first of all, let's have the clarity about bipartite. These bipartite settlements are applicable to public sector banks only, because government adopts a mechanism that for public sector banks, they should have a uniform pattern of wages, and for that, IBA will negotiate with the unions of public sector banks and they will enter into an agreement. That agreement will be binding on management of all the banks. That means procedure is that IBA will hold the negotiation with unions, then unions will give their demands and accordingly they will arrive at a MOU. Once final details are worked out regarding formation of scales, various allowances, their rates, their neutralization of DA and other benefits, then that final draft will be sent to individual bank. Then individual bank will take it to their board, and the once board of that bank will approve that, it will be implemented in the bank. That means the moment it is MOU is signed does not mean from tomorrow you will start getting higher salary. No. It will take its own time. But normally what happens is when MOU is signed, sometime IBA directs the bank to pay some ad hoc amount to its employees of area, and then some ad hoc salary increase is also released till final decision is taken. So this will depend whether IBA takes that decision or IBA completes the exercise well within the time and asks the individual banks to adopt in the board and make it a permanent thing. So all these guidelines are only applicable to public sector banks. So as far as private sector banks are concerned, they have their own structure. They can utilize this bipartite settlement as a model, as some old generation private sector banks are doing. What they do is they take the structure from the bipartite and they draw their own scales and implement for their employees. They can even have as it is structure also. This is their choice, but it is not binding on them. Now another question is whether this is applicable to IDBI Bank. Yes, it is applicable to IDBI Bank because IDBI management also participated in the negotiations, and that shows that they want to be part of public sector banks as far as wage structure is concerned. Another question asked is whether it is applicable to RRBs also. No, RRBs are not public sector banks. RRBs are owned by central government, state government and sponsored bank jointly. So what happens in case of RRB is the banking industry, that is public sector banks, they implement the scales. Then the unions in RRB also raise the issue that they should be given the salary parity with the bipartite. And individual banks they take up and usually they give the similar scales to their officers. So in RRB it will be implemented after a time lag, not immediately. It may be same, it may be lower, it may be better. It is dependent on the RRB management. Usually it is on the similar lines. Then another question is whether cooperative banks also get this
benefit of this settlement? No. Cooperative banks are very small entities. They can have their own salary structure. Nothing is binding on them. Some cooperative banks are state cooperative banks. Their salary structure is determined by the state governments, and sometimes it is better than banks, sometimes it is lesser than banks. So as far as private sector is concerned, they have their own freedom. As far as RRB is concerned, it will be implemented with time lag. As far as cooperative banks are concerned, it can be implemented by their own level, nothing to do with settlement. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अब हमने 3 बेसिक वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में कवर करेंगे ताकि बाइपेट्राइट के ऊपर वे सेटलमेंट पे आपको टोटल क्लैरिटी हो। तो मेरी सलाह आपको यह है कि पिछली 3 वीडियोस भी आप देखिए, इसको भी देखिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ये चारों वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। अब जो आज के हमारे प्रश्न जब हम ले रहे हैं उसमें यह पहला प्रश्न यह है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये लागू है? नहीं। तो पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या है। जो ये वेस्ट सेटलमेंट है या बाइपेट्राइट सेटलमेंट है, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए है, क्योंकि इन सब बैंकों का जो स्वामी है, जो ऑनर है, वो भारत सरकार है। तो भारत सरकार ये कहती है कि हम आपके स्केल डिसाइड नहीं करेंगे, आप जो है आईबीए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट, वो अपने यूनियंस के साथ बातचीत करेगी और अपना फैसला करेगी क्या होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के बिहाफ पर आईबीए यूनियंस के साथ नेगोशिएट करती है ताकि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में सेम स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पर आईबीए और यूनियन आपस में बातचीत करके एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। सबसे पहले चार्टर ऑफ डिमांड यूनियंस रखती है। नेचुरल है, वो जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं वो मांगते हैं। उनको भी पता होता है कि ये एज इट इज़ नहीं मिलेगा, पर वही है कि आप मान लो पैटर्न टैंक मांगोगे तो बंदूक तो मिल जाएगी। यही कंसेप्ट होता है हर सेटलमेंट के अंदर कि अधिक से अधिक मांगो, पर पता सबको होता है कि उससे कम ही मिलना है। तो कई लोग ये भी कहते हैं यूनियन ने मांगा था पूरा नहीं हो, वो सबको पता होता है जो मांगा है वो नहीं मिलना है। पर यदि जो एक रिजनेबल अमाउंट है 15% का, मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, वही लगभग मिलता है। मैनेजमेंट भी 2-3% से स्टार्ट होती है, उन्हें भी पता है खींचते खींचते 15 तक आ जाएंगे। अगर पहले ही 15 ऑफर कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो आईबीए और यूनियंस कई महीने तक इसकी बातचीत करती है और उसको फिर एक एमओयू साइन करती है, जो परसों हुआ आपका। अब एमओयू के बेसिस के ऊपर फाइन ट्यूनिंग होगी। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है क्या स्केल होना है वो बनेंगे, कितने % ये राइज वर्कमैन को जाएगा, कितना ऑफिसर को जाएगा, अदर अलाउंसेस में क्या देना है, अदर बेनिफिट क्या देने हैं। जैसे मान लो एनपीएस में 4% कंट्रीब्यूशन बढ़ गया बैंकों का, एम्प्लॉई का सेम रह गया, तो अब ये 4% भी कॉस्ट में ही जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके नेट इफेक्ट है वो 15% पे बिल पे होना चाहिए, ये फैसला है इसके अंदर। तो पे बिल के कौन कौन से कंपोनेंट में कहाँ कहाँ खर्चा बढ़ गया वो उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइन ट्यूनिंग करके एक ड्राफ्ट बनेगा जो आईबीए और यूनियंस एग्री कर देंगी, और वो ड्राफ्ट फिर बैंकों के इंडिविजुअल मैनेजमेंट के पास जाएगा। फिर बैंक्स अपने बोर्ड के अंदर इसकी अप्रूवल कराएंगे और फिर वो स्केल लागू होंगे बैंकों में। तो जब भी ये सेटलमेंट होती है, ये नहीं कल से ही आपको सैलरी बढ़ी हुई मिलनी शुरू हो जाएगी, पर क्योंकि हो जाता है तो बैंक भी इस आस में होते हैं कुछ मिल जाए। अब जैसे दिवाली पे उन्होंने इसके एंटिसिपेशन में पहले ही एडवांस दे रखा है कुछ, तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि एडहॉक पेमेंट्स के लिए आईबीए परमिट कर दे बैंक्स को कि आप इसकी एडहॉक पेमेंट कर दीजिए। एडहॉक में टेंटेटिव अमाउंट एम्प्लॉइज को 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है और एडहॉक सैलरी ऐड हो जाती है और नई सैलरी के नज़दीक कुछ सैलरी मिलने लगती है, सब्जेक्ट टू जब ये स्केल लागू होंगे तो वो रेगुलर सैलरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसीजर है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये लागू होगा। इसके बाद एक प्रश्न उठा कि क्या आईडीबीआई बैंक में लागू होगा? हाँ, आईडीबीआई बैंक पर लागू होगा, क्योंकि आईडीबीआई ने पार्टिसिपेट किया है नेगोशिएशन के अंदर। वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही स्केल्स रखना चाहते हैं, तो लागू होगा वहां पे। अब तीसरा प्रश्न आया कि आरआरबी पे लागू होगा? नहीं, आरआरबी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है।
आरआरबी ओन्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। तो आरआरबी में विद टाइम लैग इसी पैटर्न के ऊपर स्केल्स रीड्रॉ होते हैं और वो ग्रेजुअली ड्रॉ हो जाएंगे। जैसे ही पहले बैंकों में लागू हो जाएगा, फिर आरआरबी में इंडिविजुअल बोर्ड्स कहेंगे कि हम भी बायपेटेट लागू कर रहे हैं, तो वो उसको लागू करेंगे। उन पर बाइंडिंग नहीं है, बट लागू यही हो जाता है लगभग। इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्केल डिसाइड करेगी वैसे डिसाइड करते हैं, और जो दूसरे ऑर्डिनरी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो उनकी मैनेजमेंट के ऊपर है, उनको क्या स्केल देने हैं। एक तरीके से आप ये समझिए, जो बाइपेटेट है ये आपका एक रेफरेंस बन जाता है बाकी बैंक्स के लिए, पर पब्लिक सेक्टर के लिए बाइंडिंग है, क्योंकि उनके बिहाफ पे नेगोशिएशन हुई है, उनके बिहाफ पे सेटलमेंट नहीं है, वो बाइंडिंग है। बाकियों पे इसमें कोई बंधन नहीं है, इसको वो मानना चाहें, इसके अनुसार जाना चाहिए, इससे बेटर करना चाहें, इससे वर्स करना चाहें, उनको कंप्लीट फ्रीडम है। तो ये पोजीशन है एज फार एज किन बैंकों पे ये लागू होगा, किन बैंकों पे लागू नहीं होगा। तो बाकी भी जो प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न मैंने नोट किए हुए हैं, धीरे धीरे सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। और भी कोई आपके प्रश्न है वो आप कमेंट कॉलम में डाल दीजिए और इसको भी हम कवर कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू।